Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 8 video of full revision of heredity and evolution. And as you all know, the full revision for the not concept basis question, that is for the long and short answer type question that has the greatest chance to ask in the next upcoming examination. The question you are going to watch and their revision you are going to watch is actually taken out from the past 10 years question. So their chance of in next coming examination is greater. So you should focus each and every question and make and watch the video carefully till the ends. In this video lecture you will learn the question number revision of question number 44 onward, because in last video lecture, that is in part 7 video, you have learned the question number 37 to 43. So let I begin the question number 44 onward and revise them thoroughly. I hope you are still you have the pen paper in order to note down the important concept, so that the in fair copy you must have to write the answer of each question, because each question is necessary. I hope you are doing so. If you have any doubt or problem regarding any questions that I have explained during the video lecture, you can frequently ask me in the live classes or in the comment box. Now back to question number 44 and revise them thoroughly. Now the question number 44. Before talking about question number 44, you need to focus the last 42 and 43 क्वेश्चन. इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. वाई वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम भी आएगा तो मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि हर बार जितनी बार आता है मैं बताता हूँ. द यूजफुल वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाइल द हार्मफुल वेरिएशन कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन द लिविंग हैबिटेट्स. ये क्या इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोजोमल डिफरेंस अमॉन्ग द एग एंड स्पर्म. तो इसको हम लोग लिखेंगे एज वी नो दैट द एग हैज़ X chromosomes, X chromosomes, only X type of chromosomes, while the sperm may have the X and Y chromosome that used to restore, हमेशा used to restore the information of body design. The chromosomal difference used to restore the information of body design as well as gender of human being. यहाँ living being नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? human being. ठीक है, अब आते हैं 44 नंबर पे, जो लास्ट टाइम छूट गया था. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन दैट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए इन नेक्स्ट जनरेशन. कह रहा है कि कैसे डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में एग्जैक्ट कॉपी को क्या करता है, सेम एग्जैक्ट कॉपी को इंश्योर करता है. ठीक है, कैसे? जैसे मान लो कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आता होगा, ये कोई ह्यूमन बीइंग है जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, ये मेल है. ये दूसरा ह्यूमन बीइंग है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, ये फीमेल है. ठीक है, और इनके जो बच्चे होते हैं उसमें कैसे 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता था, काहे नहीं 92 नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जा रहा है. कभी आप सोचा है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए. यानी कि एकदम से एग्जैक्ट कॉपी कैसे नेक्स्ट जनरेशन में बन पाती है. यानी कि इसमें जो एक कॉपी इसमें है, एक कॉपी इसमें है, इसमें भी एक कॉपी कैसे जाती है. ठीक है, तो इसमें लिखेंगे बाई मीन्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and by means of sexual reproduction. In case of asexual reproduction, the exact copy is always be very easy, because the single parents involved, then what happens, suppose that एक ही पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होता है और ये इसके पास ये डीएनए की कॉपी है, इसमें जीन नंबर 1 है, जीन नंबर 2 है, जीन नंबर 3 है. ठीक है, और इसके बाद जो अगले ऑफस्प्रिंग में ये जीन कॉपी जाएगी, सपोज दैट ये इसका ऑफ स्प्रिंग है, तो चूंकि एक ही पेरेंट जा रहा है ना, तो इससे इसके पास जो कॉपी जाएगी वो क्या जाएगी, 1 2. ठीक है, 1 2 3 तीनों आ जाएगा. ठीक है, 1 2 3 ये तीनों आ जाएगा. तो ये एग्जैक्ट कॉपी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आना कोई बड़ी बात नहीं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे कॉपी जाता है, गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू. फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सपोज दैट दिस इज द पेरेंट नंबर 1 एंड हैविंग जीन 1 2 3, and this is the parent number 2 having the gene 1 2 and 3, और ये इसका डीएनए पेयर में होता है. ठीक है,
ये डीएनए पेयर में होता है 4 5 6, और इसका भी डीएनए पेयर में होता है, तो क्या जाता है 4 5 6। ठीक है, अब होगा क्या कि ये दोनों पहले गैमीट्स बनाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या बनेगा, गैमीट्स बनेगा। तो इसका एक क्रोमोसोम जो है कोई आधा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 और ये सेपरेट आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 5 6, ये दूसरे गैमेट्स में चला गया। सिमिलरली ये 1 2 3 ये एक गैमेट्स में चला जाएगा, और ये 4 5 और 6 दूसरे गैमेट्स में चला जाएगा। इसका एसोसिएशन इससे हो जाएगा और इसका एसोसिएशन इससे हो जाएगा, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और उसमें बिल्कुल एकदम अपने पेरेंट्स की तरह से ही पेयरिंग होगा। 1 2 3 4 5 एक साइड में, 1 2 3 एक साइड में, 4 5 6 एक साइड में, और इसका भी एकदम पेरेंट्स की तरह से 1 2 3 एक साइड में, 4 5 6 एक साइड में। ठीक है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लिखना है, बाय मीन्स ऑफ if the organisms perform the asexual reproduction, लिखेंगे the DNA copying exactly made by the organisms by the two different way. If the parents are perform the asexual reproduction, then it is very easy to copy the DNA, but if parents perform the sexual reproduction, then by means of gamete formation, it is possible to form the एग्जैक्ट कॉपी इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको अपने लैंग्वेज में लिख डालने। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 45, एक्सप्लेन हाउ डू सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमिन जेनेटिकली एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन इन ह्यूमन बीइंग। सेक्स मीन्स द जेंडर ऑफ चाइल्ड, हाउ डू, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डू जेंडर ऑफ चाइल्ड जेनेटिकली डिटरमिन एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, मीन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। So suppose that this is the newly born child, so how can you say the child is male or female? Phenotypically it is possible because of having some body design, but genetically how it can be possible? देखो ये वर्ड दे दिया genetically, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। लिखेंगे कॉपी में, as we know that if the genetic patterns of the newly conceived baby has XX along with the autosome, then the baby undoubtedly will be the girl. If the chromosomal patterns are XY along with the autosome, then the baby will be boy. So in this way I think you can explain, और ये एग्जाम में पूछेगा तो 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो आते हैं अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कुल 60 क्वेश्चन मैंने आपके लिए कलेक्ट करके रखा है। इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, लाइव प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, और ये लंबे लंबे ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और ये जब भी पूछेगा, जिस साल भी पूछेगा, जैसे ही पूछेगा, 5 मार्क्स में पूछेगा। लिख रहा है क्वेश्चन, जीनोटाइप ऑफ प्लांट्स बियरिंग पर्पल फ्लावर कैपिटल P and one with white flower small p when these are crossed। कह रहा है जीनोटाइप तो दे दिया, कैपिटल P और स्मॉल p, ये क्रॉस हो रहा है। व्हाट कलर ऑफ द फ्लावर वुड यू फाइंड इन F1 जनरेशन। देखो पर्पल के लिए क्या बोलेंगे, कैपिटल P, और वाइट के लिए बोलेंगे स्मॉल p। दोनों के बीच में गैमेट्स बनेगा, कैपिटल P इससे आ जाएगा, स्मॉल p इससे आ जाएगा। इसके बाद क्रॉस होगा तो सभी बच्चे कैसे होंगे, कैपिटल P स्मॉल p, यानी कि डोमिनेंट फादर को फॉलो करेंगे, यानी कि सब के सब क्या हो जाएंगे, पर्पल हो जाएंगे। ठीक है, सब के सब क्या हो जाएंगे, पर्पल कलर के हो जाएंगे। आप जीनोटाइप बनाना जानते हैं, एक बार मैं और बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब आगे पूछ रहा है गिव द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर इन F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। कह रहा है कि अगर F1 प्लांट्स के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, यानी कि कैपिटल P स्मॉल p के बीच में अगर सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं, तो इसमें वाइट फ्लावर का परसेंटेज पता करना है। तो आप जानते हैं कैपिटल P आ जाएगा, एक आ जाएगा कैपिटल P स्मॉल p। ठीक है, एक आ जाएगा फिर क्या, कैपिटल P स्मॉल p, और दूसरा आ जाएगा स्मॉल p। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 तो पर्पल हो जाएंगे और एक जो है ये वाइट फ्लावर आ जाएगा, यानी कि बी का आंसर हो जाएगा 25%। बी का आंसर क्या हो जाएगा 25%, ए का आंसर क्या हो जाएगा पर्पल। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये आप कॉपी पे कर लीजिए, कई बार हो चुका है। इन व्हाट रेशियो यू विड फाइंड
कैपिटल पी एंड स्मॉल पी इन F2 जनरेशन प्रोजिनी, ड्रॉ फ्लो चार्ट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब इसी का फ्लो चार्ट करना है कि इसका परसेंटेज, इनका रेशियो क्या होगा, कैपिटल पी और कैपिटल पी स्मॉल पी का जो रेशियो है वो F2 जनरेशन में क्या होगा। तो जब आप सेल्फ क्रॉस करवाते हैं किसका, कैपिटल पी, ठीक है, ये क्या, ये F1 का कैपिटल पी स्मॉल पी ले लिया और दूसरे का भी कैपिटल पी स्मॉल पी ले लिया, इनके बीच में फ्लो चार्ट करवाएंगे तो ये हो जाएंगे कैपिटल पी, ठीक है। और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कैपिटल पी स्मॉल पी हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है, कैपिटल पी स्मॉल पी। और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा स्मॉल पी। अब ये रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, किसके किसके बीच में, कैपिटल पी इज टू स्मॉल पी, इसी के बीच में रेशियो। तो ये कैपिटल पी का रेशियो कितना आया है, ये कुल मिला के 1 है, ये सब तो कैपिटल पी स्मॉल पी है, और ये क्या है स्मॉल पी, ये भी कितना है 1, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, ठीक है। अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कह रहा है इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस द टाल पी प्लांट्स डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड शॉर्ट पी प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल टी प्रीति ऑब्टेन्ड ओनली टाल प्लांट्स डिनोटेड बाय कैपिटल टी स्मॉल टी इन F1 जनरेशन, however in F2 generation she obtained both tall and short plants. Using the above information explain law of dominance एंड सेकेंड वन क्या हुआ है व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आसानी से आप कर लेंगे, कितने लोग कर लेंगे ये हम नहीं जानते हैं, बट इफ़ यू कैन डू देन प्लीज़ रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। प्रीति की तरह से आपको भी एक्सपेरिमेंट करना है, क्या करना है, एक कैपिटल टी ले लेना है और एक को स्मॉल टी ले लेना है, दोनों के बीच में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे के जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएंगे, यानी कि सब के सब टाल आ जाएंगे। इसके बाद इसका इसी पे सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। रेशियो कितना बनेगा 1:2:1 जेनेटिक रेशियो, और फिनोटिपिक रेशियो ये 3:1 का आ जाएगा। ये कई बार हो चुका है। एक टर्म आया है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये हमारा इवोल्यूशन चैप्टर से है, बट इतना जान लीजिए कि सपोज दैट देयर आर अ लिटिल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हैविंग वेरी फ्यू इन नंबर्स एंड इन द वेरी फ्यू ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन सम इंडिविजुअल्स immediately change their body design, then this will lead to form the new organisms in next generation. This is called as genetic drift. The original genetic drift is the phenomenon in which the small group of population change itself, the phenotypic characters change itself in the very small group of population that lead to change the overall population characters in next generation. आई होप ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ये आप लिख लीजिएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द फिनोमिनन, और बाकी वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जो मैं बोला हूँ उसको दोबारा से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, वाई ट्रेट्स ऑफ एन इंटेलिजेंस और नॉलेज कैन नॉट पास इनटू नेक्स्ट जनरेशन। ये आप अपने मन से करेंगे, आंसर बताएंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस अगले जनरेशन में पास क्यों नहीं होता है, चलो आते हैं। वाई आर सम पी प्लांट्स टाल एंड अदर शॉर्ट इन नेचर, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू role of genes in controlling characters, explain with reference to role of genes in controlling characters। लिखेंगे the plants may be tall and may be short depending upon their genotype, keep in mind, लिखेंगे कॉपी में, the plants may be short or tall, the plants may be short and tall, may be short and tall because of having their genetic constituents, as we know that, आगे लिख लेना, as we know that tallness is the characters that refers for the dominant traits of the living being, while the dwarfness is the one of the another
characters that refers as the recessive characters for the living being, so that the plant are tall because of having their dominant genes, and plants or the any kinds of plants are dwarf because of having their dwarfness gene small t. ये बातें लिख लीजिएगा. एक्सप्लेन विद रेफरेंस ऑफ रोल ऑफ जीन्स, तो ये सारी बातें लिखनी है. जीन्स में भी डोमिनेंट और में भी रिसेसिव डिपेंडिंग अपॉन देयर expression. If the genes express along with capital T, in which any small t or capital T, the plants will be the tall. If the genes along with small t having the small t, then the plants will be tall. So the roles of genes in a population or in the individuals may express along with the dominant or recessive genes. The dominant genes express itself alone, while the recessive traits express along with the pairs of another रिसेसिव कैरेक्टर्स और रिसेसिव जीन्स. आई होप ये पूरी कहानी ख़त्म हो गई है. ये पूरी चीज़ें आप अपने मन से लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, 49 का हो गया है. अब 50 ऑनवर्ड ये लास्ट वीडियो लेक्चर से मैं शुरू करूँगा. 50 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सारे आंसर जो है ये लास्ट क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 50 ऑनवर्ड क्वेश्चन बिगन कर दूँगा. थैंक यू.